Good morning, everyone, and welcome to the class. In the previous class, we were discussing about diversity, है ना. हम लोग diversity को समझने की कोशिश कर रहे हैं. We are trying to understand diversity, and we have seen that when people come from different religious and cultural background, that is diversity. We are like others in many respect, in many aspect, but in some aspect we are different from others, like the language we speak, the religion of our religious community to which we belong, or our cultural background. These are the diversity. But here we have also discussed one thing, that if there is difference in the if there is difference in the resources and opportunities of the people, then it is not diversity. Actually, it is inequality. So when someone is rich and someone is poor, it is not diversity, है ना. ये डाइवर्सिटी नहीं होती है किसी का रिच होना, किसी का पुअर होना. इट्स अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, है ना. हमारे रिसोर्सेज में इनइक्वालिटी है, हमारे अपॉर्चुनिटीज़ में इनइक्वालिटी है. जैसे हमने देखा समीर 1 और समीर 2 के जो स्टोरी हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने देखा कि समीर 1 यूज टू गो टू स्कूल, है ना, बट समीर 2 वॉज नॉट इन अ कंडीशन टू गो टू स्कूल. तो क्यों नहीं जा पाता था? बिकॉज ही वॉज नॉट हैविंग द रिसोर्सेज, ही वॉज नॉट हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू गो टू द स्कूल, क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसको स्कूल भेजना अफोर्ड कर सके. क्योंकि अगर वो स्कूल जाएगा तो फिर जो एक अर्निंग मेंबर है घर का, वो अर्न करना बंद कर देगा, तो फिर उनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी, है ना. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल ही वॉज अर्निंग मनी. तो ये जो डिफरेंस हमको समीर 1 और समीर 2 में दिखता है, दैट इज अबाउट इनइक्वालिटी, है ना. इसी तरह से वन मोर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी इज देयर, that is about caste inequality. As we have we know that in our society all the castes are not treated equally, especially in the previous time. अगर हम देखते हैं before independence, तो this was the situation कि all the caste, all the people belonging to different castes were not treated equally. Like people belonging to Sudras were treated in a very bad manner. Not only this, our caste system was based on birth. So whoever takes birth in whichever family, he or she will have to work according to his or her family. Like a person takes birth in the family of a potter, then he will have to do the work of potter only for his whole life. और उसको पॉटरी के अलावा कुछ और सीखने की ज़रूरत ही नहीं थी, बिकॉज पॉटरी ही तो उसको करना है, वो कुछ और कर ही नहीं सकता है. तो इस तरह से, इस कारण से क्या होता था, इनइक्वालिटी आ गई. किसी का बर्थ ब्राह्मण फैमिली में हुआ तो उसको बहुत पढ़ाई करनी है, लेकिन जिसका बर्थ एक पॉटर की फैमिली में, उसको पढ़ने की जरूरत है, उसको पढ़ने ही नहीं दिया जाता ना, बिकॉज ही हैज़ टू डू द वर्क ऑफ पॉटरी ओनली. सो ही सपोज टू नो ओनली द आर्ट ऑफ पॉटरी, है ना. तो ये इस कारण से इनइक्वालिटी आती थी. इसको हमने डिस्कस कर लिया था. और फिर हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि जो डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है, उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है. व्हाट इज़ द बेनिफिट of living in a diverse society, a society which is full of diversity, a society where people belonging to different religious community, where people belonging to different cultural community are living together. In such society, what do we get? What is the benefit of living in such society? As we have discussed in the previous class, that if we are living in such society, then we are able to enjoy different festivals. We celebrate different festivals like Holi, Eid, Christmas. All the festivals are celebrated by us because people belonging to different communities like Hindus, Muslims and Christians are living together, है ना. Then we have also seen that because of this diversity we are able to experience different types of food, है ना. जो फूड क्रिश्चियंस के हैं, जो फूड हिंदुओं के हैं, जो फूड मुस्लिम्स के हैं, वो सब हम खाते हैं, वो सब हमें मिलता है. क्यों? क्योंकि हम एक डाइवर्स सोसाइटी में रहते हैं, है ना. इसी तरह से वी आर एबल टू वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, है ना.
तो these are the benefit. We are able to speak different type of languages. These are the benefit of living in a diverse society. One more thing is there, as we were discussing this point, that when we live in a diverse society, then we get different very different type of experiences in life, है ना. These diverse experiences of life add add imaginative power in us, है ना. अगर हम बहुत ही डाइवर्स सिचुएशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इससे हमारा जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही डाइवर्स हो जाता है. और जितना डाइवर्स एक्सपीरियंस हमें होगा, हमारा इमेजिनेशन का पावर उतना ही स्ट्रांग होगा, उतना ही रिच होगा इमेजिनेशन. और जितना रिच इमेजिनेशन होगा तो जो हमारी क्रिएटिविटी होगी वो उतनी ही अच्छी होगी, हाई क्वालिटी की होगी. तो डाइवर्सिटीज़ का एक ये भी फ़ायदा है कि डाइवर्सिटी वाले अगर एक्सपीरियंसेस लाइफ में हमें मिल रहे हैं तो हम एक जो क्रिएटिव वर्क होता है ना उसमें हमारी रिचनेस आ जाती है. जैसे जो स्टोरी लिखने वाले लोग हैं, है ना, जो डिफरेंट टाइप से अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करते हैं, उनकी काम में बहुत ज़्यादा जिसको कहेंगे कि रिचनेस आ जाती है. यहाँ पर हम एक सिचुएशन को सोचते हैं, जब हम उस सिचुएशन को सोचेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, है ना. एक ऐसे सिचुएशन को आपको इमेजिन करना है जहाँ पर बहुत सारे स्टोरी टेलर्स और राइटर्स हैं, है ना. अब ये जो स्टोरी टेलर्स और राइटर्स हैं उन सबको एक ही जगह पे रहना है, एक ऐसी जगह पे रहना इन सारे स्टोरी टेलर्स और राइटर्स को जहाँ पर कि सारे जो लोग हैं, ऑल पीपल वोर द सेम टू कलर्स, रेड एंड वाइट. जो भी लोग कपड़े पहनते हैं उनके कपड़ों के बस दो ही कलर होते हैं, रेड एंड वाइट. द थर्ड कलर इज नॉट देयर. ठीक है. ये जो स्टोरी टेलर्स और राइटर्स जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह पे जो लोग हैं, जो पीपल हैं, दे आर वेयरिंग ओनली टू कलर्स ऑफ ड्रेस. बस वही दो कलर, रेड वाइट, जिसका भी ड्रेस देखो रेड वाइट, कोई और कलर नहीं है. और सारे लोग बस एक ही फूड खाते हैं, ओनली वन फूड, लाइक पोटैटो, सिर्फ पोटैटो. ऑल द पीपल ईट ओनली पोटैटोज. एक तरह के कपड़े पहनते हैं, एक तरह का खाना खाते हैं. ठीक है. और सभी लोग जो हैं वो दो एनिमल्स को अपने साथ रखते हैं, लाइक डियर और कैट. ठीक है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो स्टोरी टेलर और जो राइटर्स हैं, दे आर लिविंग एट अ प्लेस वेयर ऑल पीपल आर वेयरिंग सेम कलर ऑफ क्लोथ. लाइक रेड एंड वाइट, है ना. they all ate the same food. The same food is eaten. Like हमने ये सोचा पोटैटोज, सभी पोटैटोज ही खाते हैं. And they all take care of the two animals. They all take care of the same two animals. हमने सोचा ये डियर और कैट, है ना. अब क्या है कि ऐसे हाँ, एक और चीज़ है कि ये जो लोग हैं ये अपने एंटरटेनमेंट के लिए बस दो ही गेम खेलते हैं, दो तरह के ही गेम खेलते हैं. एक ओनली वन, स्नेक एंड लैडर्स. बस वो स्नेक एंड लैडर्स ही खेलते हैं
they do not play any other game in order to entertain themselves, है ना. They play only स्नेक एंड लैडर्स. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि डाइवर्सिटी नहीं है ना. लोग एक ही तरह के कपड़े पहन रहे हैं, लोग एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, लोग एक ही तरह के एनिमल्स को रखे हुए हैं अपने पास, लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए एक ही गेम है वो खेलते हैं. तो यहाँ पर अगर इस तरह की जगह पे कोई स्टोरी टेलर रहेगा तो वो स्टोरी टेलर की जो इमेजिनेशन पावर है वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाएगी. ही और सी विल नॉट बी एबल टू इमेजिन इन अ प्रॉपर मैनर. वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन बहुत लिमिटेड हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी. जितना डाइवर्स एक्सपीरियंस एक स्टोरी टेलर को मिलेगा उसका इमेजिनेशन उतना ही रिच होगा, और जितना यूनिफॉर्म टाइप ऑफ एक्सपीरियंस मिलेगा स्टोरी टेलर के लिए वो उतना ही उसका इमेजिनेशन उतनी वीक हो जाएगी, वो इमेजिन कर ही नहीं पाएगा अच्छे से. जब इमेजिनेशन नहीं अच्छा होगा तो ऑब्वियसली वो जो लिखेगा स्टोरी या जो कुछ भी अपने क्रिएटिव काम करेगा उसमें वो जो होनी चाहिए, जो ब्यूटी होनी चाहिए उसके क्रिएशन में, वो नहीं आ पाएगी. तो दिस इज अबाउट डाइवर्सिटी. ये डाइवर्सिटी ऐड करता है कि डाइवर्सिटी के कारण हमारा इमेजिनेशन पावर रिच होता है. अगर हमको डाइवर्स एक्सपीरियंसेस ना मिले, अगर हम इस तरह के लोगों से के आस घिर के रहें, अगर हमारे चारों तरफ इस तरह के लोग रहेंगे तो हमारी जो इमेजिनेशन पावर है वो बिल्कुल ही वीक हो जाएगी और हमारी क्रिएटिविटी जो है वो बहुत ही अच्छी नहीं रह जाएगी. तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ लिविंग इन अ diverse society. It gives us diverse type of experiences, and because of this diverse type of experiences we are able to imagine, and because of this imagination we are able to create beautiful creations. Okay, so अब हम लोग आगे देखेंगे कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में बात करेंगे. डाइवर्सिटी इन इंडिया. So now we will see diversity in our country. Our country, India, is a country of many diversities. People who live in our country, they speak different languages. They eat different types of food. They celebrate different festivals. They practice different religions. So these are diversity. है ना. जब हमारा कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड डिफरेंट होता है तो हम उसको डाइवर्सिटी कहते हैं. ठीक है. बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर चीज़ में एक दूसरे से डिफरेंट है. डाइवर्सिटी है. डाइवर्सिटी इज़ देयर इन आवर कंट्री. वी ऑल बिलोंग टू डिफरेंट religious and cultural background. Still we see that in many things we are similar, है ना. but we are different also in some ways. we are different, है ना. तो हम क्या देखते हैं कि अगर आज से हम 200 years ago जो समय था, आज से 200 साल पहले का जो समय था, अगर उसको हम उसके बारे में सोचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि at that time we were not having any kind of means of transport. न तो ट्रेन थे, न एरोप्लेन था, न बस था, न कार था, है ना. if people
needed to travel from one place to another, then they will have to move on their foot, or they move on the back of the animals like horses, camels, है ना. And one means of transport was there even before 200 years ago, that is ships, जो कि वाटर में चलते. वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे पहले जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंसान ने यूज़ किया, दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, बोट के थ्रू, शिप्स के थ्रू लोगों का ट्रैवलिंग होता था. तो व्हाट वी सी कि अराउंड 200 years ago people used to travel from one place to another on horses, on camels, on foot or in ships. वो शिप में भी ट्रैवल करते थे. ठीक है. एंड what was the need of traveling? Why people traveled from one place to another? क्यों लोग ट्रैवल करते थे? तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं. ट्रैवलिंग के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. लाइक मेनी टाइम्स पीपल वर इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स वेयर दे कैन सेटल इन, है ना. सेटल होने के लिए उनको नए प्लेसेस चाहिए होते थे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे. कई बार ट्रेड के पर्पस से, जैसे एक जगह से सामान खरीदा लोअर प्राइस पे, and then they used to sell this at a higher price at another place, है ना. तो for this purpose of trading also people traveled from one place to another, है ना. और क्या होता था कि ट्रैवलिंग आसान नहीं था. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल बिकॉज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर नॉट देयर. सो what happened कि it took a very long period to travel from one place to another, है ना. लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तब जाके वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, पहुँचते थे. तो ये जो इतना ज़्यादा टाइम लगता था, तो जैसे आजकल क्या होता है, हम किसी काम से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं अपनी जगह पे. लेकिन उस समय क्या होता था कि when people travel from one place to another, it took so much time that most of the time क्या होता था, people stayed there. बहुत लंबे समय तक वहीं रह जाते थे, वो वापस नहीं आते थे. जहाँ वो गए वो वहीं रह जाते थे, बिकॉज इट वॉज नॉट ईजी टू कम बैक, है ना. और कई बार ऐसा होता था कि जैसे उनके घरों जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर मान लो फेमाइन आ गया. फेमाइन क्या हुआ? सूखा पड़ जाना. ड्रॉफ्ट एंड फेमाइन्स. तो कई बार लोग जहाँ पर हैं वहाँ पे ड्रॉफ्ट हो गया, फेमाइन हो गया. इसका मतलब कि बारिश नहीं हुई, बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होने से किसी भी तरह का कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं हो पाता है, और इसी को हम कहते हैं ड्रॉफ्ट या फेमाइन वाली सिचुएशन. तो अगर इस तरह का ड्रॉफ्ट या फेमाइन आता है तो क्या होगा, उनको दूसरी जगह मूव करना पड़ता था. जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर फेमाइन आ गया, तो दे आर नॉट एबल टू लिव देयर. हाउ विल दे गेट द फूड, है ना. दे विल नॉट गेट द फूड, एंड इन सर्च ऑफ फूड दे नीड टू मूव टू अनदर प्लेस. तो इस तरह से लोग कई रीजन से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, बट जब वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे तो वो वहीं पर रह जाते थे बहुत लंबे समय तक, क्योंकि वापस आना जाना इट वाज नॉट इजी, है ना. और जब वो नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो घर बनाते हैं, है ना. व्हेन दे गो टू अ न्यू प्लेस दे मेक देयर होम्स, है ना. और वहाँ पर वो रहना शुरू कर देते हैं. तो जब भी हम किसी नई जगह पर जाते हैं, वी हैव यही सेम चीज़ हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा था, है ना. ट्रैवलिंग हमने देखा था, why people travel from one place to another, and then we have also seen कि what is the benefit of traveling from one place to another. तो हमने यही देखा था कि जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो हम वहाँ पर से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं. जैसे जिस जगह पर हम पहुँचे उस जगह के लोग कुछ अलग तरह से खाना बनाते होंगे,
जिस जगह पर हम पहुंचे वहाँ के लोगों की म्यूज़िक कुछ डिफरेंट होती होगी, घर बनाने का तरीका उनका डिफरेंट होता होगा। तो जब भी हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम जिस जगह को बिलोंग करते हैं, हम जिस प्लेस को बिलोंग करते हैं, जो हमारा बैकग्राउंड है वो भी हमारे साथ आता है ना। जिस जगह को हम ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, वहाँ पर हम जिस तरह से रहते थे, जिस तरह से खाते थे, जिस तरह से गाते थे, व्हाटएवर वे में जो भी हम करते थे, वो सब चीज़ें हमारे साथ इस नई जगह में भी आती है ना। हम अपने साथ साथ उन चीज़ों को लेकर चलते हैं, जो हमारा खान पान का तरीका है, पहनावे का तरीका है, जो हमारा बोल चाल है, एवरीथिंग इज बीइंग कैरिड बाय अस विथ अस, है ना। हम उसको अपने साथ लेकर चलते हैं। तो नई जगह पर हम आ रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ें हमें सीखने को मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ वो चीज़ें भी हमारे साथ है जो कि हमारे ओरिजिनल प्लेस की चीज़ें थी। तो क्या होता है कि नई और पुरानी दोनों चीज़ मिक्स हो जाती है, और जब ये मिक्सचर होता है तो हम क्या देखते हैं कि एक नई तरह की चीज़ जो है वो आ जाती है ना। जैसे कि हमने बताया था, जैसे लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज जो हमारी अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज है और जहाँ पर हम आए हैं वहाँ की लैंग्वेज डिफरेंट है, तो जिस नए प्लेस में हम आए हैं उसकी लैंग्वेज को भी हम लर्न करेंगे, उसके भी कुछ एलिमेंट आ जाएंगे, और जो हमारा पुराना लैंग्वेज था वो भी हमारे साथ रहेगा। तो ये नया और पुराना मिल करके एक बिल्कुल ही नई चीज़ पैदा हो जाती है ना। इसी तरह से जो फूड है, इसमें मोमो का एग्जाम्पल मैंने दिया था, है ना, कि कैसे मोमो जो कि स्टीम्ड मोमो होता था नॉर्थ ईस्ट में, जब वो नॉर्थ में आता है तो वो फ्राइड मोमो बन जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, एक बिल्कुल ही नया आइटम तैयार हो जाता है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग। वेन एवर वी ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, what happens that we learn so many new things at the new places, but at the same time the original things, the original way of cooking, the original way of living, the original way of music also is with us, है ना। तो वो जो पुरानी चीज़ हमारे साथ है और जो नई चीज़ हमने सीखी, उन दोनों को मिक्स करके हम एक बिल्कुल ही नया चीज़ बना देते हैं, है ना। सो द लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजियंस बिकेम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। जो पुराना है और जो नया है उनका मिक्स बन जाता है, एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर समथिंग वेरी न्यू एंड डिफरेंट कम्स, है ना। दिस इज कॉल्ड इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर। इसको मैं अगर फिगर ड्रॉ करके बताऊं तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। लाइक ये हमारा ओरिजिनल प्लेस है, ए नाम का एक इंसान है, ठीक है, इसका ये नो द प्लेस इज ए जो है वो प्लेस है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंसान रह रहा है, सपोज करो राम इज लिविंग एट दिस प्लेस ए। ये टू सम रीजन सपोज कमाइन आ गई, ड्राफ्ट आ गया, बिकॉज ऑफ दिस इसको ट्रैवल करके दूसरी जगह जाना पड़ा अपनी लाइवलीहुड की सर्च में। नाउ ही रीचेस अ न्यू प्लेस विच इज बी। नाउ राम रीचेस बी। अब जब वो बी प्लेस में आता है तो वो क्या देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी नई नई चीज़ें वो सीखता है ना। जो बी है जगह, वहाँ पर बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखता है, नए खाना बनाने के नए तरीके, घर बनाने के नए तरीके, म्यूज़िक, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूज़िक, सब कुछ वो देखता है। लेकिन उसके साथ साथ जब राम यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इस ए प्लेस की जो एलिमेंट्स थे, यहाँ पर जो घर बनाने का तरीका था, खाना बनाने का तरीका था, म्यूजिक का जो तरीका था, वो सब राम के साथ साथ इस प्लेस में भी आती है ना। राम यहाँ पर है, बट वो यहाँ की जो लाइफस्टाइल, यहाँ की जो लाइफ थी, उसके एलिमेंट्स को भी वो साथ में लेकर आया है बी प्लेस पे, और यहाँ पर वो बहुत सारी नई चीज़ें भी देख रहा है। तो ये यहाँ पर जो चीज़ें अवेलेबल थी और यहाँ पर जो चीज़ें अवेलेबल है, इन दोनों का क्या हो जाता है,
intermixing. This is called intermixing of culture. कल्चर क्या होता है? जो हमारे रहन सहन का तरीका होता है, जो हमारे खान पान का तरीका होता है, जो हमारा पहनावा होता है, दीज ऑल आर, जो हम लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ कल्चर. म्यूजिक है, डांस है, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ कल्चर. तो यहाँ ए प्लेस का जो कल्चर था वो राम अपने साथ लेकर आया, बी प्लेस का जो कल्चर था उसको राम ने सीखा. तो इस तरह से दोनों कल्चर मिल गए, ए का कल्चर और बी का कल्चर दोनों मिल गया, दोनों की क्या हो गई? इंटरमिक्सिंग. दिस इज कॉल्ड इंटरमिक्सिंग. और जब ये इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर होता है तो क्या होता है? एक बिल्कुल ही न्यू एंड डिफरेंट कल्चर क्रिएट होता है. ठीक है, तो ये इस तरह से दिस इज द बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग. जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो इसी तरह की चीज़ें होती हैं. और इसी तरह से जो एक पर्टिकुलर प्लेस की कल्चर है वो चेंज होती है, वो रिच बनती जाती है. रिच क्यों बन गई? क्योंकि जब इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर हुआ और इस तरह से जब न्यू एंड डिफरेंट कल्चर एग्जिस्टेंस में आया तो हमारे ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, है ना. जैसे कि अगर वो मोमो वाला एग्जांपल लेकर आप चलेंगे तो आपको सब समझ में आएगा. जब नॉर्थ ईस्ट में स्टीम्ड मोमो था, जब वो नॉर्थ में आया तो वो फ्राइड हो गया, फ्राइड मोमो बन गया. तो अब हमारे पास जो मोमो के जो वेराइटीज आ रहे हैं उसमें बढ़ गए. एक स्टीम्ड मोमो है, एक फ्राइड मोमो है. दिस इज द रिचनेस ऑफ द कल्चर कि हमारे मेन्यू में जो आइटम्स हैं उनका नंबर बढ़ गया. दिस इज रिचनेस ऑफ कल्चर. कैसे ये आ रहा है? कैसे कल्चर हमारा रिच हुआ? बिकॉज ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर, है ना. क्योंकि कल्चर्स मिक्स हो रहे हैं, एक जगह का कल्चर दूसरी जगह के कल्चर से मिक्स होकर के एक नया कल्चर क्रिएट हो रहा है. एंड दिस इज द रिचनेस ऑफ द कल्चर. ये हमारे कल्चर को रिच बनाता है ना. तो इसी तरह से अगर हम जैसे कि जो डिफरेंट प्लेसेस हैं अपनी कंट्री के, उनकी अगर हिस्ट्री को देखें तो उस हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि किस तरह से जो डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंस था वो उस पर्टिकुलर जगह के लाइफ को शेप किया. एक पर्टिकुलर जगह पे कैसे डिफरेंट प्लेसेस के कल्चर ने इन्फ्लुएंस डाला और बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ दैट प्लेस इज शेप्ड. उसी हिसाब से उस जगह की लाइफ शेप हो जाती है. हर जगह की, जैसे कि एक पर्टिकुलर रीजन की लाइफ डिफरेंट होती है, हम ये जानते हैं. उधर जैसे किसी पर्टिकुलर जगह राजस्थान के लोग इस तरह के होते हैं, राजस्थान में लाइफ ऐसी होती है. क्यों राजस्थान की लाइफ वैसी होती है? क्योंकि उसके कुछ हिस्टोरिक उसका बैकग्राउंड है. वहाँ पर उस राजस्थान जगह पे जो डिफरेंट कल्चर्स का जो इम्पैक्ट पड़ा उसके कारण वहाँ का लाइफ वैसा है. और इसी तरह से हिस्ट्री के साथ साथ कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि जो वेदर है, जो फिजिकल फीचर्स हैं, उन सब का भी इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी जगह के कल्चर पे, है ना. तो ये दो फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं. तो जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं वो भी हमारे लाइफ को शेप करते हैं. जैसे कि अगर हम किसी कोस्टल एरिया में रहे, कोस्टल एरिया मतलब जहाँ पर समुद्र का किनारा है ना, सी कोस्ट पे हम अगर रह रहे हैं तो हमारी लाइफ जो होगी वो एक अलग तरह की लाइफ होगी. और अगर हम एक माउंटेनियस रीजन में रह रहे हैं तो हमारी लाइफ बिल्कुल अलग तरह की होगी. कहने का मतलब कि जो हमारे चारों तरफ की जो सराउंडिंग है दैट शेप आवर लाइफ, वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, शेप करता है. अगर हम सी कोस्टल रीजन में है तो हमारी लाइफ माउंटेनियस रीजन की लाइफ से बिल्कुल ही डिफरेंट होगी. तो ये दो फैक्टर्स हैं. हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर अगर हम कह रहे हैं कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो ये डाइवर्सिटी आई कहाँ से? क्यों हमारा कंट्री इतना डाइवर्स है? क्यों हमारे कंट्री में इतने सारे लैंग्वेज बोलने वाले, इतने सारे रिलीजन को मानने वाले, इतने सारे
डिफरेंट कल्चर को अडॉप्ट करने वाले लोग रहते हैं। आखिर इस डाइवर्सिटी का रीज़न क्या है? द रीज़न ऑफ दिस डाइवर्सिटी लाइज इन द हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। जो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, किस तरह से डिफरेंट जो प्लेसेस उसके आसपास के थे, जो कल्चर्स उसके आसपास के थे, उसने कैसे इन्फ्लुएंस किया पीछे से, बहुत पुराने ज़माने से कैसे उसने इन्फ्लुएंस किया, और जो उसका सराउंडिंग्स है, उन सराउंडिंग्स ने कैसे उसको इम्पैक्ट डाला। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स होते हैं जो कि जिसकी वजह से डाइवर्सिटी आती है। तो इसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे।